Hey everyone, welcome to Grammar Spark. So today we are starting English grammar for the very beginning, and in this class we will understand how English is start step by step. Okay, so first of all, remember one thing's English is a language. We use language to speak, read, write and express our thoughts. So just like Hindi has rules, English also has rules. These rules are called grammar. Okay, so first of all, what is a grammar? Grammar means the rules of a language. These rules help us speak and write correct English. Okay, for example, she go to school. क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहे हैं? No, she goes to school. This sentence is correct. Okay, he are my friend. और ये सेंटेंस भी रॉन्ग लग रहा है. He is my friend. So grammar teaches us how to make correct sentence. Now the question is, how does English begin? English began with alphabets. Alphabets. There are 26 letters in English. These letters are called alphabets. From A to Z, A to Z को हम क्या बोलेंगे? लेटर. और उन लेटर को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट. So now these alphabets are divided into two parts. The first is a vowel and the second is a consonant. Vowel क्या होता है? There are 5 vowels in English: A, E, I, O, U. Okay, these letters are called vowel. Example: apple, elephant, orange. इन सारे sentences में हमें vowel देखने को मिल रहा है. Okay, vowels are very important because without vowels the pronunciation become difficult. For example, apple, I mean it's wrong. हमसे without pronunciation we can't speak correct in a correct way. It sounds incomplete. But when vowels are added, like apple, book, okay, now pronunciation become easy. So vowel helps us. So vowels help us speak words properly. And consonant क्या होता है? Now all the remaining letter except A, E, I, O, U are called consonant. मतलब A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी जितने कुछ भी बचते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? Consonant हो जाते हैं. And most English words are made using both vowels and consonant together. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, स्कूल्स, पेंसिल. आप इसमें देखेंगे कि वॉबल भी वर्ड्स हैं इसमें एंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स भी मिक्स हैं. ओके, एंड थर्ड स्टेप पे हम आते हैं. नाउ आफ्टर अल्फ़ाबेट द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ लेटर. ओके, लेटर क्या होता है? अ सिंगल अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ लेटर. एक सिंगल अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं. लाइक A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. हम इन सब को क्या बोलेंगे? इन सब को हम लेटर बोलेंगे. एंड दीज आर लेटर्स. ओके, नाउ व्हेन लेटर्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ वर्ड. जब हमारे लेटर्स जुड़ते हैं, जब हम वर्ड लेटर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें क्या देते हैं? एक वर्ड्स देते हैं. अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड. लाइक बॉय, गर्ल, पेन, स्कूल्स, टीचर्स. इन सब में आप देखेंगे कि हमारे जो लेटर्स हैं वो जॉइंट हैं और हमें ये कुछ मीनिंग्स भी दे रहे हैं. लाइक अगर हम कह दें वाई बी बी, ऐसा GRLI, तो ये थोड़े से हमें रॉन्ग लग रहे हैं क्योंकि इनका कोई सेंटेंस ही नहीं, इनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, सेंस ही नहीं निकल रहा है. तो ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये हमारे फिर अल्फ़ाबेट ही हो जाएंगे. बट जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जब हम लेटर्स को ज्वाइन करते हैं और वो लेटर्स ज्वाइन होने के बाद हमें कुछ मीनिंग्स देते हैं, सो हम उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं. ओके, different letters join together and make a meaningful words. Now words alone cannot express complete meaning properly. So what do we need? We need a sentence. Sentence क्या होता है? A group of words with complete meaning is called a sentence. ओके, जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, जब शब्द एक समूह बनाते हैं तो और उनका कुछ कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. लाइक आई एम अ स्टूडेंट, सी इज़ सिंगिंग, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये सब हमारे क्या हो गए? सेंटेंस हो गए. दीज सेंटेंस गिव कंप्लीट मीनिंग. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. इफ़ आई ओनली से स्कूल, बॉय, प्लेइंग, दीज आर ओनली वर्ड्स. But when we say the boy is playing in the school,
Now it becomes a sentence because it gives complete meaning. Okay, so English develop step by step like this: first alphabet, letters, words, sentence. This is the basic foundation of English grammar. Now let us learn some important rules of sentence. Okay, पहला start with a capital letter, like my name is Ravi. तो हम क्या करते हैं, हमसे सेंटेंस का पहला जो हमारा लेटर होता है, वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो ऑलवेज हमारा कैपिटल लेटर में होता है. एवरी सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. रूल नंबर 2 क्या होता है, फुल स्टॉप. वी यूज फुल स्टॉप. एवरी कंप्लीट सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. शी इज़ माई फ्रेंड. ओके, फुल स्टॉप. रूल नंबर 3 क्या है, सेंटेंस शुड हैव कंप्लीट मीनिंग. प्लेइंग इन द पार्क, दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि ये हमें कोई भी सेंस या कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है. द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, ये कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है, लग रहा है कि कुछ ना कुछ हाँ अर्थ इसका निकल रहा है, बट प्लेइंग इन द पार्क इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि हमें कोई इसका अर्थ नहीं मिल रहा है. नॉट द सेंटेंस इज कंप्लीट. ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रामर. व्हाई डू लर्न ग्रामर? मतलब ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में तो आता है कि हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं. Improve speakings, improves writing, help us make correct sentence and increase confidence. Without grammar, English become confusing. जैसे हर एक चीज़ का रूल होता है, ट्रैफिक रूल्स एंड मतलब हर एक चीज़ का रूल होता है अपना. सो ग्रामर का भी कुछ रूल है. अगर हम ग्रामर नहीं सीखेंगे तो हम करेक्ट सेंटेंस, वर्ड, स्पीकिंग हमारी करेक्ट नहीं हो सकती है, सब कुछ रॉन्ग हो जाएगी. लाइक मैंने बोला ही गो मार्केट यस्टरडे, ही गो मार्केट यस्टरडे, ये हमें थोड़ा सा सेंटेंस लग रहा है पटा टाइप की, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है. आपको भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा. अगर लग रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा. ही गो मार्केट यस्टरडे का करेक्ट फॉर्म है ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. ओके, सो ग्रामर हेल्प्स अस स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली. ओके, नाउ टुडे वी लर्न ग्रामर, alphabets, vowel, consonant, letter, word, sentence, and this is the first step of learning English. In the next class we will learn parts of speech. ये पूरी क्लास में अगर आपको ज़रा कहीं भी डाउट हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया, मतलब फर्स्ट वीडियो है तो कोई ना कोई इशू तो हो सकता है, वो तो ऑडियंस को देखने के बाद पता चलता है. तो आपको जो भी प्रॉब्लम इस वीडियो में लग रहा हो, जो भी डाउट हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन.